Good evening, everybody. Okay, bache, we are going to discuss a new sample paper today. All right. Okay, question number 1. All right, बच्चे ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी सैंपल पेपर्स में बहुत बार देख चुके हैं. अब हम इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है ये क्वेश्चन. A student used following reaction for preparation of oxygen gas in the laboratory. This question is from NCERT exemplar. All right. NCERT exemplar का question है. What would you observe about the reaction? तो बच्चे first of all the heat is being used, so it is endothermic. और यहाँ potassium chlorate is breaking down, so it is decomposition. So what you will say? It is a decomposition reaction and endothermic. तो A option हम pick करेंगे. The reaction is endothermic क्योंकि heat absorb हुई है, and it is a type of decomposition reaction. Thermal decomposition है, इसमें heat use हो रही है. All right, so इसका आंसर है A, 1A. Then question number 2. बच्चे we have hydrated copper sulfate crystals. So hydrated copper sulfate crystals, CuSO4 dot 5H2O. This is also known as blue vitriol. इसको blue vitriol भी कहते हैं. आप इसको heat करोगे बच्चे, once you heat it, it is going to lose the water of crystallization and it is going to turn into anhydrous copper sulfate. This is anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate का क्या मतलब है? इसके अंदर water of crystallization नहीं है. तो बच्चे there will be a color change. It will become white powder. Okay, anhydrous copper sulfate is white powder. Initially it was blue crystals. तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? It will be B, blue to white. Copper sulfate crystals which are blue in color, they will convert to white powder. So blue vitriol, which is containing water of crystallization, due to which it is blue in color, वो क्या करेगा? Water lose करेगा अपना, it will turn into anhydrous copper sulfate, which is white powder. So 2B. All right, next question. Question number 3. Iron. बच्चे iron plus steam, it gives me iron 2,3 oxide plus which gas? यहाँ कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन. कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन. ऑल राइट, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो, आयरन सॉलिड प्लस H2O, this is gaseous form, steam, it will form Fe3O4. It is solid plus hydrogen gas. It is a mixture of iron 2,3 oxide, magnetic oxide. तो बच्चे यहां जो गैस बनेगी वो क्या है? Gas is hydrogen. And what is the nature of metallic oxide of iron? Metallic oxide is basic. तो बच्चे इसमें हम ऑप्शन क्या पिक करेंगे? B. Metallic oxide is not acidic, it is basic in nature, and gas is evolved. Gas is evolved, which is hydrogen gas. Okay, chalo. बच्चे metal oxides are basic in nature, they cannot be acidic. ठीक है ना? और जो गैस इवॉल्व होगी, ओके, just a minute. Acidic nature of iron and gas. बच्चे what will you say about hydrogen gas? अगर आप हाइड्रोजन गैस को देखो बच्चे, हाइड्रोजन गैस को अगर हम पानी में मिक्स करें, it will form water which is neutral. तो बच्चे डी ऑप्शन आई थिंक इसका बेस्ट आंसर है. एक बार चेक करिए. It is talking about acidic nature of oxide of iron and gas. तो बच्चे metal oxides are basic in nature, they are not acidic. And जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसको अगर आप वाटर में मिक्स करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस
is non-metal. When it combines with oxygen, it will form H2O. तो बच्चे वो भी एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है. तो आई थिंक बच्चे इसका आंसर डी होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? डी होना चाहिए इसका ऑप्शन, क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन गैस है. अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन देखता हूं तो H2O बनता है. H2O is neutral. It is neither acidic nor basic. तो आई थिंक वी शुड पिक अप डी ऑप्शन. चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग. पोटेशियम सॉलिड, हाइड्रोजन लिक्विड, KOH एक्वस, H2. तो इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी बन रही है, चेक करिए. 2K 2KOH 2H2. ओके, सी ऑप्शन, 4th C, चेक करिए. 4th C. ऑल राइट, आगे चलें बच्चे. पोटेशियम प्लस वाटर, इट इज अ वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन. और जो यहाँ हीट इवॉल्व होगी तो हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट बर्निंग. पोटेशियम एंड सोडियम का रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है, एक्सप्लोसिव होता है. तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस है इट विल स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl, इट इज डिस्क्राइबिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो बच्चे इसमें क्या होगा, how would the pH of solution change as we add excess of acid to an alkali. बच्चे अगर हम एसिड को एल्कली में डालेंगे तो pH will fall, 14 से नीचे आएगा. तो बेस्ट where formation of NaCl is absorbed. बच्चे NaCl की फॉर्मेशन इधर न्यूट्रल पे, बिकॉज NaCl इज न्यूट्रल. तो जब NaOH पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा यू विल गेट NaCl एंड NaCl इज न्यूट्रल. तो सी ऑप्शन. अगर आप इसमें एसिड ऐड करते जाओगे तो देन pH विल फॉल बिलो टू D. तो हम आंसर क्या पिक करेंगे यहाँ, सी ऑप्शन. जब NaCl फॉर्म होगा तो बच्चे ग्राफ का कौन सा पोर्शन शो होगा, pH 7 न्यूट्रल. ठीक है, इज इट क्लियर. 5th C. हमें देखना है ग्राफ में NaCl कब बन रहा है. बच्चे जब NaCl बनेगा तब न्यूट्रल हो जाएगा. अगर आप एसिड ऐड करते जाओगे तो pH विल देन फॉल बिलो 7. तो हमें सी ऑप्शन पिक करना है. ऑल राइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर, Fe plus H2O. ओके, दिस इज शोइंग रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम. तो बच्चे यहाँ सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, iron is oxidized to magnetic oxide. Iron is oxidized. Iron is oxidized and water is reduced. Okay, तो iron क्या है यहाँ, iron is being oxidized. और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वही रिड्यूसिंग एजेंट है. तो विल पिक ऑप्शन ए. ठीक है, 6th A. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7. केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. बच्चे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज redox. It will form copper plus water. It is a redox reaction. 7C. All right, chalo next question. Which of the given option correctly represents parent acid and parent base of ammonium carbonate. बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है सैंपल पेपर्स में, तो ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा. तो अमोनियम कार्बोनेट, इट इज NH4 2CO3. तो बच्चे NH4 से क्या बनेगा, इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस. और CO3 से क्या बनेगा, H2CO3. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज पेरेंट बेस, पेरेंट एसिड इज कार्बनिक एसिड. वीक एसिड वीक बेस, सो दिस सॉल्ट विल बी न्यूट्रल. इसका pH क्या होगा, न्यूट्रल.
तो 8th B. All right. Question number 9. How will you identify reaction between potassium iodide and lead nitrate? बचे Ki solution, Ki plus PbNO3 twice. बचे both are aqueous, colorless. जब इनका रिएक्शन होगा इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड PbI2. बचे दिस इज येलो प्रेसिपिटेट प्लस KNO3, this is aqueous. So how will you identify? By formation of yellow insoluble precipitate. C option. लेड आयोडाइड का बचे येलो प्रेसिपिटेट बनेगा. Okay, this reaction is given in the NCERT book. Potassium iodide plus lead nitrate, both are aqueous solutions. इनको अगर हम reaction करेंगे, you will get lead iodide. Lead iodide is yellow precipitate. 9C. चलो next question. What will be correct regarding universal indicator? It is an indicator having pH equal to 7. This option is wrong. It gives orange color at pH 3. But this can be correct. It gives blue color at pH 5. Wrong. This will happen at more than 7. It becomes colorless, green at pH 7. So C, D भी गलत है. Correct option is B. It gives orange color at pH equal to 3. All right. Question number 11. Cross section of leaf label 1, 2, 3, 4. तो बच्चे इसमें आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. सो वन क्या है? क्लोरोप्लास्ट. 1 is क्लोरोप्लास्ट. ऑल राइट. 4th क्या शो कर रहा है? 4th इज एपिडर्मिस की लेयर है. ये नंबर 3 क्यूटिकल की लेयर है. ओके. एंड नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इज ऑल्सो सेल्स. ये पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं. नो सॉरी, नॉट पेरेन्काइमा. नंबर 4 इज गार्ड सेल, क्योंकि स्टोमेटल पोर के पास है. ओके, गार्ड सेल्स. ऑल राइट. अब बच्चे आंसर पिक करिए. क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन मीजोफिल. बच्चे व्हाट इज मीजोफिल? मीजोफिल ये मिडल पोर्शन है. तो बच्चे दिस इज करेक्ट. ये तो मुझे सही लग रहा है. ए ऑप्शन सही लग रहा है. दे आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स. अब देखो, वैक्सी क्यूटिकल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. दिस इज रॉन्ग. इट मेक्स इट वाटर रेजिस्टेंट. ये लीफ को वाटर रेजिस्टेंट बनाता है. फोटोसिंथेसिस. अपर एपिडर्मिस इट कंटेन्स मिलियन. बच्चे अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नहीं होता, जनरली लोअर एपिडर्मिस पे है. तो डी ऑप्शन भी गलत है. ओके. गार्ड सेल कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैस. बच्चे गार्ड सेल से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है. ऑलराइट. मेन फंक्शन. तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है यहां. तो बच्चे वी शुड पिक बी. गार्ड सेल कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. So you can say they help in controlling the exchange of gases. 11th B. All right. Next question. Question number 12. Okay. Again heart का diagram आ गया है. बच्चे यहाँ number 2 क्या है? Number 2 is vena cava. Vena cava. What is number 1? Number 1 is right auricle. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इज पल्मनरी आर्टरी. ओके. तो नंबर 1 राइट एट्रियम, नंबर 2 वेना कावा, नंबर 3 पल्मनरी आर्टरी. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स पार्ट्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. तो बच्चे इसमें सब में डीऑक्सीजनेटेड है. यू हैव टू जस्ट पिक द करेक्ट लेबलिंग. नंबर 2 इज वेना कावा, नंबर 1 इज राइट एट्रियम, नंबर 3 इज पल्मनरी आर्टरी. सो बी ऑप्शन. ठीक है. 12th B. All right. Question number 13. Which of the following is a protein digesting enzyme?
इसका करेक्ट ऑप्शन है पेप्सिन. पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग. अब अच्छा, इसमें जो बाइल है, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. लाइपेज डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स. सलाइवरी अमाइलेज तो हमें पता है बच्चे, इट इज प्रेजेंट इन माउथ. इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस. All right, question number 14. The figure below shows a human digestive system with labels 1 to 4. Identify the correct label with its function. But number 1 is esophagus. Esophagus or food pipe. Number 2 is stomach. Number 4 is large intestine. Number 3 is pancreas. ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शन. Esophagus. Esophagus ensures swift movement of food by way of rhythmic relaxation and contraction of muscles. बच्चे this is true. A तो true है, इसमें peristalsis होती है. Stomach secretes HCl that helps in emulsification. This is wrong. HCl emulsification में help नहीं करता. This is done by bile juice. Pancreas secretes acidic pancreatic juice containing enzymes. Not acidic. Basic में काम करते हैं ये. Large intestine secretes trypsin. This is also wrong. बच्चे large intestine में enzyme होता ही नहीं है, तो A option is correct. A option. All right. Next. Question number 15. ये बच्चे एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है. गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स. एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट सक्शन विच प्रोवाइड्स वाटर टू रूट्स. बच्चे दिस इज रॉन्ग. दिस इज हेल्पिंग इन अपवर्ड मूवमेंट. अपवर्ड मूवमेंट. Transpiration occurs mainly with half of xylem present in leaves. Wrong. Transpiration causes water to rise in plants by pulling it upwards. C is correct. The effect of root pressure in transport of water is more important during daytime. This is false. But this is true during night. Root pressure is more important during night. जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाएगी. तो बचे 15C. Is it clear? समझ आ गया सबको? ट्रांसपिरेशन बच्चे ज्यादा हेल्पफुल है. रात के टाइम रूट प्रेशर का रोल होता है व्हेन ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16. बच्चे सबसे पहले लेबलिंग करो. ए क्या है? किडनीज. बी क्या है? यूरेटर्स. व्हाट इज सी? सी इज यूरिनरी ब्लैडर. What is D? D is urethra. अब आपको लेबल करना है. यूरिनरी ब्लैडर का ढूंढो बच्चे. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये रहा C1. अब C का 1 ढूंढो कहाँ है? एक ही जगह है, तो ये हमारा आंसर है. देखो एक ही से पता चल गया हमें. C1. A का क्या दिया है? 3. A is kidney. It is involved in formation of urine. सही. बी का क्या दिया है? 4. इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी यूरेटर्स. एंड डी का क्या होगा? इट अलाउज यूरिन टू पास थ्रू. ऑलराइट बच्चे, अगर आप नोटिस करो हमने एक ही से आंसर निकाल लिया. तो कोडिंग में अगर हम श्योर नहीं है सारे आंसर्स के लिए, तो एक या दो को ही आप करेक्टली अगर आइडेंटिफाई कर लो तो यू कैन गेट द आंसर. इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, पर हो सकता है कई बार कुछ ऑप्शंस आपको ना आए. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द डेप्थ ऑफ अ बकेट फिल्ड विद वाटर seems to be less than actual depth. बच्चे दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. तो इसका आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट इंटरफेस. बच्चे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ में फर्क हो जाता है.
जो एक्चुअल डेप्थ है उससे ज्यादा आपको पानी ऊपर दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which diagram shows image formation of an object on a screen by diverging mirror। मुझे डाइवर्जिंग मिरर में आपको इमेज फॉर्मेशन दिखानी है, तो ये सही लग रही है। वजह फोकस से नहीं जाएगी, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए था। ऑल राइट, तो वजह सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पिक करें, यहां से यहां वापस यहां यहां। ओके, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए एक बार। 18th ए में बचे फोकल लेंथ से ही रीट्रेसिंग दिखाई है, दैट इज रॉन्ग। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होता तो करेक्ट होता। तो 18C is correct. Question number 19. Both a spherical mirror and thin spherical lens have focal length of -15. What type of mirror and lenses they are? बच्चे देखो, दोनों में क्या हो रहा है, माइनस में है फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ रियल होगा, तो कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, इसका आंसर क्या है? कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव lens, 19th B. All right. Question number 20. If a beam of red light, yellow light and violet light are incident at same angle on inclined surface of prism from air and they produce angle of deviation R, Y and V respectively, which of the following is correct? बच्चे सबसे ज्यादा डिविएशन किसके लिए होगी? ब्लू के लिए कि रेड के लिए कि येलो के लिए? सॉरी, सबसे ज्यादा डिविएशन किसके लिए होगी? वायलेट के लिए होगी। ओके, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन वायलेट के लिए होगा, उसके बाद किसके लिए होगा? येलो के लिए, और सबसे कम होगा रेड के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन वुड बी फॉर वायलेट, देन येलो, देन फॉर रेड। ए ऑप्शन, क्योंकि बच्चे वायलेट की स्पीड सबसे कम होती है, उसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, तो एंगल ऑफ डिविएशन भी उसके लिए मैक्सिमम होगा, 20A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A concave mirror produces a magnification of +2। बच्चे +2 रियल इमेज बनी है, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, तो बच्चे इट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। 21C पिक करें। आपको वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज चाहिए, तो it will produce magnification of +2, so it should be between focus and pole। All right, next question. Examine the above figure, which of the following option is correct? Okay, बच्चे प्लेन मिरर दिखा रहे हैं, ये इमेज फॉर्मेशन देखनी है, तो बच्चे इमेज फॉर्मेशन तो सेम उसी जगह पे होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से, इमेज डिस्टेंस के हिसाब से ही हो जाएगी इसमें। आप इसको रिट्रेस कर सकते हो, यहीं बनेगी। ओके, ऑलराइट, थोड़ी गलत हो गई, इसको खींच के 1 2 3 यहां आएगा, यहां थोड़ा सा मैंने ऑफ बना दिया है इसको। ओके, तो बच्चे मैग्निफिकेशन कितनी होगी? इट इज अ प्लेन मिरर, तो बच्चे प्लेन मिरर है तो इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन वुड बी +1, और देखो 3 बॉक्सेस हैं, तो +3 फ्रॉम मिरर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। Magnification of image is +1 and image is +3 centimeter from mirror। चलो क्वेश्चन नंबर 23। Diamond sparkles more than a similar cut glass piece। क्यों बच्चे? क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। More internal reflection takes place due to greater refractive index of diamond।
तो बच्चे आपको डायमंड स्पार्कल करता हुआ दिखेगा, लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है। 23B। क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? डायमंड का बच्चे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा है, और हम डायमंड को कट कर लेते हैं, तो उससे क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होती जाती है, लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी, तो डायमंड आपको स्पार्कल करता हुआ दिखता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। टू आइडेंटिकल प्रिज्म P1 एंड P2 दे आर यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चे सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? 4। एक इन्वर्टेड, दूसरा अपराइट, या आप पहले को अपराइट रख रहे हो तो दूसरा इन्वर्टेड। तो बच्चे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3 आर रॉन्ग। इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकती, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, 24D। चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 25। सोडियम कार्बोनेट। बच्चे आप इसको हीट करोगे तो व्हाट इट विल फॉर्म? Na2O plus CO2. It type of reaction and gas evolved. बच्चे गैस इसमें बनेगी? Yes, you'll get CO2 gas. Is it exothermic? No, it is not exothermic. तो इसका सही ऑप्शन है B. It is endothermic reaction and gas is evolved. 25B. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाईएस्ट? बच्चे जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी उस कंट्री में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो इसका सी ऑप्शन है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब है? विच कंट्री, इसका क्या मतलब हुआ? इन विच कंट्री? ओके 26B, सी ऑप्शन, सी कंट्री। चलो ऑल राइट। तो बच्चे यहां लोएस्ट H+, यहां हाईएस्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27। When a metal M is treated with dilute H2SO4, then gas is evolved and it is collected over water as shown in the figure. Identify the correct conclusion. बच्चे देखो, अगर आप किसी भी मेटल को एसिड में डालोगे, इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है बच्चे, इट इज लाइट, और ये पानी को नीचे डिस्प्लेस करके कलेक्ट होती है। तो बच्चे देखो, गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन एंड द इवॉल्व्ड गैस इज लाइटर देन एयर। दिस इज द रीजन इट इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। Hydrogen is lighter gas and is collected by downward displacement of water. Downward displacement. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चे ये A and B. All right, next. A boy met with an accident and his leg get fractured. डॉक्टर के पास गया। बच्चे दिस इज टॉकिंग अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिक्स्ड अ व्हाइट पाउडर इन वाटर, applied it on his leg along with cotton and gauze. So which of the following is true about white powder? बच्चे white powder is plaster of Paris. On mixing the white powder and water, gypsum is formed. Second is also true. White powder is also used to make ornate designs on walls and ceiling. This is also true. बच्चे हम इससे false ceiling design वगैरह बनाते हैं। It gives off CO2 on mixing with water. Fourth statement is wrong. So correct answer is 1, 2, 3. B option. All right. 28B. What is gauze? बच्चे गॉज क्या होती है? वो जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक तो उसके बाद कॉटन होती है, बैंडेज होती है ना, बैंडेज, कॉटन की बैंडेज, उसको गॉज भी कह सकते हो। ऐसे ऐसे जो कॉटन का होती है बैंडेज, गॉज। क्लियर? कॉटन हो गई और बैंडेज होती है ना, उसको गॉज भी कह सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29।
4 metal ABCD, they are treated with water, steam and dilute HCl. Results are given below. तो बच्चे देखो इसमें सिंपल लॉजिक है, जो सबके साथ रिएक्ट करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव. द मेटल ए का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, स्टीम के साथ रिएक्शन है, HCl के साथ रिएक्शन है. तो बच्चे ए मेटल कौन सा हो सकता है? देखो पोटेशियम तो होगा नहीं, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव, तो ये नहीं है. कॉपर भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कॉपर का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता. सिल्वर तो हो ही नहीं सकता, तो बचा गया Fe. 29A, रिएक्शन विद स्टीम एंड HCl. ओके, तो इट इज Fe. चलो क्वेश्चन नंबर 30. On mixing aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride, the correct observation is, बच्चे इसके अंदर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4, white PPT. Okay, it will form a white PPT. तो बताइए करेक्ट ऑब्जर्वेशन. व्हाइट पीपीटी बनना है, तो आई थिंक वी शुड पिक दिस वन. पर ये कैसे पता लगेगा? क्लियर सोल्यूशन तो नहीं है. पीपीटी वाइट है और वो घुला रहेगा चारों तरफ, ये पूरे उसमें ऐसे टर्बिड हो जाएगा. ओके, विल पिक बी ऑप्शन 30B. क्लियर? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बच्चे, वो पानी में घुला रहेगा, दिखेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 31. असर्शन रीजन. आयन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट रस्टिंग. बच्चे दिस इज ट्रू, बहुत इजी है. रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन आर्टिकल्स को पेंट किया जाता है. रस्टिंग डैमेजेस द आयन आर्टिकल्स एंड फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन देम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. पर बच्चे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो विल जस्ट पिक ऑप्शन बी. Question number 32. The bleaching powder is basic in nature. CaOCl2. बच्चे Cl2 HCl, strong acid. तो बच्चे it is not basic in nature. Assertion is false. Bleaching powder is used as an oxidizing agent. Reason is true. तो बच्चे assertion is false, reason is true. You will pick D. Then lungs always contain a residual volume of air. Akriti, are you sure PPT will settle down? 30A. PPT सेटल डाउन हो जाएगा तो हम A पिक करेंगे. बस मुझे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कलर वाइट दिखाया हुआ है, इसलिए मैं B को पिक कर रहा हूं, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. इसमें थोड़ा डार्क दिखाया, आई एम नॉट श्योर इसको व्हाइट ही बोलना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने नंबर 1 नहीं पिक किया. इसलिए मैंने बी पिक किया है 30 का, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. दिस इज ट्रू. सारी हवा नहीं निकलती लंग से बाहर, थोड़ी बहुत हवा अंदर रहती है. इट इज टू एंश्योर दैट इनफ टाइम फॉर रिलीज ऑफ CO2 and for absorption of oxygen. Ensure enough time for release of CO2 and for absorption of O2. Okay, let's say this is true and we'll put it as A. Residual volume से क्या होता है, एक तो lungs पूरी तरीके से collapse नहीं होंगे, and we will say कि exchange of gases easily हो पाएगी, efficiently हो पाएगी. So let's say 33A. आकृति, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आपने शायद सुना नहीं, मैंने क्या बोला था. मैं सिर्फ इसलिए बी ऑप्शन पिक कर रहा हूं क्योंकि उसमें व्हाइट कलर दिखाया हुआ है, और प्रेसिपिटेट जो बनता है वो व्हाइट होता है. दिस इज द रीजन आई पिक्ड अप बी, क्योंकि व्हाइट लगाया दिखाया हुआ है, और किसी में व्हाइट नहीं दिखाया हुआ. देखो यहाँ शेडेड है. सो आई एम नॉट श्योर कि क्या पिक किया जाए, तो मैंने तो व्हाइट के लिए ये पिक किया सेकंड. ओके, ये रीजन है.
अगर आप श्योर हो कि सेटल हो जाता है तो गो विद ए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस शेड। ये देखो, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो ये व्हाइट लग रहा है मुझे, तो मैं तो इसलिए बी पिक कर रहा हूं। रेस्ट किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो लग सकता है तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शन तो हमारे पास है ही, चॉइस होगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34। The sun is visible to us about 2 minutes before actual sunrise and about 2 minutes after actual sunset. This is true. The time difference between actual sunrise and apparent sunrise, apparent sunrise is about 2 minutes. This is also true. बच्चे पर ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो विल जस्ट पिक बी. It is not explaining why this occurs. It is due to atmospheric refraction. So I'll pick option B. Reason is not explaining assertion. Question number 35. Table given below shows color change of indicator in acidic and basic medium. Which of the following information is correct? Blue litmus paper, change in color in acid, it will turn red. Okay, पर यहां लिखा है color change in acid, no change, color change in base. Okay, तो बच्चे देखो, ऑप्शन ए गलत है. टर्मरिक change in acid yes, change in base no. This is also wrong. Methyl orange change in acid, change in base. This is correct. Phenolphthalein no change in acid, change in base. True. तो बच्चे आपको यहाँ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पिक करनी है, तो 1 and 2 आर इनकरेक्ट. तो हम क्या पिक करेंगे? ए. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों गलत है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. 35A. All right. Question number 36. Which of the following substances are produced by anaerobic respiration in yeast? बच्चे इसमें क्या है? CO2 और अल्कोहल बनेगी, तो आई विल पिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल. Okay, 36B. All right, question number 37. Which process occurring in human body does not involve energy from respiration? Respiration से किसमें एनर्जी नहीं मिलती? All right, देखो, contraction of heart muscle यहाँ एनर्जी चाहिए, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर यहाँ एनर्जी चाहिए, डिफ्यूजन के लिए रेस्पिरेशन से एनर्जी नहीं चाहिए. डाइजेशन ऑफ ब्रेड, will this involve energy from respiration? Enzymes are released, they will digest it. ओके बच्चे, आपको यहां ये देखना है कि पैसिव प्रोसेस कौन सा है. दिस इज पैसिव, दिस इज पैसिव. तो बच्चे आई थिंक आई शुड पिक डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी. ओके, ऑल राइट. तो ये पैसिव है बच्चे, पर ये जो ऑक्सीजन है ये बाद में रेस्पिरेशन में यूज होगी. तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेशन के साथ कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है. ए तो इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है. अब बच्चे आपको बी और सी में पिक करना है. डाइजेशन ऑफ ब्रेड, डाइजेशन ऑफ ब्रेड इज डन बाय एंजाइम्स, so it is not in any way related to respiration. I think we'll pick up C. डिफ्यूजन से जो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी वो बाद में रेस्पिरेशन में यूज होती है, तो किसी ना किसी तरीके से वो रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड है. तो आई थिंक वी शुड गो विद सी ऑप्शन. आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? मुझे बी और सी में डाउट है. डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन. अगर मैं डिफ्यूजन देखता हूं तो डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस, वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा उसके बाद वो रेस्पिरेशन में यूज होगा. बताइए कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल के लिए भी एनर्जी चाहिए हमें. व्हाट डू यू से, क्या करें, कौन सा ऑप्शन पिक किया जाए? ऑलराइट, एक मिनट, लेट्स चेक. आई थिंक इसके पीछे की दी होगी. लेट्स सी की है कि नहीं. अगर की है तो इसमें चेक कर लेते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी.
इट्स क्वेश्चन नंबर 37. ओके देखो, वही जो मैं सोच रहा था. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड does not require energy from respiration because diffusion is a passive process and it does not need energy to occur. Okay, but what about digestion of bread? Digestion of bread के बारे में क्या? What do you think? How they are trying to relate it to respiration? So they are saying after bread is digested it will release glucose, उसके बाद उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ओके चलो लेट्स गो विद बी देन. वैसे तो मुझे सी लग रहा था पर पहले जैसे मैं सोच रहा था वही है. ओके बी, इट इज अ पैसिव प्रोसेस. क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. एग्रीड. ओके तो बी ऑप्शन उन्होंने दिया है तो विल गो विद बी. ऑल राइट चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? अच्छा, respiration is a chemical process, not a physical process. So during inhalation, okay, इन्होंने तो सारे ही physical process के हिसाब से दिए. During inhalation, ribs move inwards. अच्छा, inhalation जब air अंदर जाती है तो ribs अंदर नहीं जाते. This is wrong. Ribs move outwards. So this is wrong. In the alveoli, exchange of gases takes place. I.e., oxygen from alveolar air diffuses into blood and CO2 from blood into alveolar air. B is true. Hemoglobin has greater affinity for CO2 than oxygen. This is false. Alveoli increases the surface area for exchange of blood. This is wrong. So बच्चे will pick option B. (38B). All right, question number 39. If angle of refraction is 30 degree, find out the angle of incidence of ray of light incident on surface of plastic slab of refractive index √3. तो बच्चे refractive index is equal to sin 30 degree over sin, okay sorry, angle of incidence find करना है. Sin r is sin 30 and this is √3. Okay, तो बच्चे sin I की क्या वैल्यू आएगी? √3. What is the value of sin 30? sin 30 की क्या वैल्यू होती है बताओ? 0. तो sin I is √3. तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? 45. क्या आंसर आएगा? 39D. क्या ऑप्शन आना चाहिए? sin 30 0 और sin 30 is half. तो √3/2, सॉरी √3 into 2, 2√3. इसका आंसर क्या आएगा बताओ? बी ऑप्शन. ऑप्शन बी 60 डिग्री. ऑलराइट 39B 60. तो बच्चे इसमें साइन की वैल्यूज पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 40. Object is placed 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 25 centimeter. The image of object will be formed at. बच्चे यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपको -20 सेंटीमीटर.
फोकल लेंथ इज गिवन एज, कॉनकेव मिरर है बच्चे -25 सेंटीमीटर। तो बच्चे v फाइंड करना है यहाँ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला लगा के इसको आप सॉल्व करेंगे। सो इट इज 1/v इज इक्वल टू -1/25 प्लस माइनस, ओके, -1/20, इसका एलसीएम निकालिए। ओके 25 to 50, ओके 25, 400 आएगा इसका एलसीएम। 100 -4 -5 -9 आ गया। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? एलसीएम सही लिया है मैंने? 25 of 25 4, ओके -9। पर ये तो आंसर ही नहीं है। आई डोंट हैव दिस ऑप्शन। क्या गलती कर दी मैंने? आजकल मेरे से एलसीएम नहीं सही निकलता। देखो आप, क्या आंसर आएगा बताइए। साइन ऑफ u इज रॉन्ग इन द एलसीएम। ओके बच्चे v इधर ले गए तो 1/v, ओके प्लस हो जाएगा। गॉट इट। 1/v इज इक्वल टू, आ गया, समझ आ गई बात। इट शुड बी 100, सो v u इधर आ गया, f इज -4 and this would be +5. All right, I got it. So v is equal to -4 plus, okay, 5 1। कितना है बच्चे आंसर? 1 into 10 square behind the mirror, A ऑप्शन, A ऑप्शन आएगा 40A। चेक करो एक बार। ऑल राइट 40A आएगा बच्चे। 1 into 10 square वर्चुअल इमेज बनेगी। फोकल लेंथ इज 25 एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पैरासिटिक मोड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। पैरासिटिक मोड है तो बच्चे ये रहा सी ऑप्शन, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज प्लांट पैरासाइट, टिक्स एंड टेपवर्म्स, ये सब पैरासिटिक हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ lymph fluid is to drain the excess fluid from extracellular space back into the blood, A सही हो सकता है। carries digested and absorbed fat from intestine, B is also correct। circulates around the body and helps in clotting, बच्चे ये clotting में नहीं help करता। this is the function of platelets not lymph। तो बच्चे both A and B are correct, D ऑप्शन आएगा इसका। alright, both A and B are correct। 42D। लिम्फ क्या करता है बच्चे? बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो एक्सेस है, उसको वापस ब्लड में डालता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है, विलाई के अंदर लैक्टील्स होती हैं, लैक्टील्स के अंदर लिम्फ होता है, तो वो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। सो ए एंड बी बोथ करेक्ट। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 43, इफ पावर ऑफ लेंस इज -10D इट मींस दैट द लेंस इज, बच्चे माइनस में पावर है तो यानी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, यानी ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है, सो इट इज कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कितना आएगा? -10, सी ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक? सी ऑप्शन 43C। देखो पावर इज इक्वल टू 1/f है ना, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, f इज इक्वल टू 1/p, तो 1/10 यानी 0.1 मीटर यानी -10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, if real image of a candle flame formed by a converging lens is twice the size of flame and distance between lens and image is 40 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens?
बच्चे इसमें रियल इमेज बन रही है जो ट्वाइस दी साइज है, तो बच्चे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2, तो यानी v इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 2u। ऑलराइट, तो आपको यहां डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, ऑलराइट, what distance should the candle be placed from the lens? तो बच्चे v by 2 कर लो, 20 माइनस 20 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, मैग्निफिकेशन के उससे ही निकाल लेंगे हम, 44d माइनस 20। चलो क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज विल बी बियॉन्ड, यहां आगे चली जाएगी। द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वन इज रॉन्ग, वन गलत है। इमेज इज रियल, ट्रू। दिस इज अ कॉनकेव लेंस, ओ सॉरी बच्चे दिस इज अ कॉनकेव लेंस, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, व्हाट डू यू थिंक, इमेज इज रियल, ये गलत है, वर्चुअल इमेज बनेगी इसमें, दिस इज रॉन्ग। कॉनकेव hence its focal length is positive, this is also wrong. The size of image is very small. Okay, तो 1 and 4 ही बच रहे हैं, तो मुझे बी ऑप्शन ही पिक करना है। व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ कॉनकेव लेंस बच्चे, तो इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बन सकती। कौन सा सही है, कॉनकेव लेंस में छोटी इमेज बनेगी, यस छोटी इमेज बनेगी बच्चे, और एफ और ओ के बीच में बनेगी। क्लियर, तो विल पिक ऑप्शन नंबर 1 and 4 एज करेक्ट, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ऑलराइट, a graph is drawn between sine of angle of incidence and sine of angle of refraction for 4 colors A, B, C, D. Which color has highest angle of refraction? तो बच्चे यहां जितना ऊपर ग्राफ जाएगा उसका स्लोप उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे सी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 46 ए, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप बनेगा उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यहां साइन आई के लिए मैक्सिमम आर देखो कम है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 47। The above lens has a focal length of 20 centimeter. Object height is 5 millimeter, which is placed at a distance of 10 centimeter from optical center. Magnification of object is, बच्चे इसकी मैग्निफिकेशन निकालिए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट 5 मिलीमीटर है, which is placed at a distance of 10 centimeter from optical center. मैग्निफिकेशन कितनी होगी? बच्चे यहीं से देख के पता लग रहा है डबल ही होगी, देखो तो 2 पिक कर लेते हैं। माइनस में तो हो नहीं सकती, और 1 भी नहीं है क्योंकि इक्वल साइज नहीं है, तो 2 47 सी देख के ही पता लग रहा है मोर देन
1 है। क्लियर, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। The inspection authority visited the cable manufacturing company. They tested their cable products ABCD on basis of their properties. बच्चे केबल मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब वायर बनानी है, तो उनको कौन सी चीज चाहिए होगी? डक्टाइल भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई भी चाहिए। तो मैलिबिलिटी अगर हो तो वो भी अच्छा है। तो कौन कौन से उन्होंने डिस्प्रूव कर दिए? ए बी सी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ए ऑप्शन। केबल बनानी है तो डी सही है। इजी क्वेश्चन है बच्चे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलो केस स्टडी क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चे, ये हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चे यहाँ कौन सी गैस बनेगी? देखो, दिस इज एक्टिविटी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, डी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, इसमें सोप बबल्स में हाइड्रोजन गैस बनेंगे एंड दिल बर्न विद पॉप साउंड। ये बच्चे एसिड बेसिस सॉल्ट की एक्टिविटी है, चैप्टर 2 में से ये एक्टिविटी ली गई है। क्वेश्चन नंबर 50, which salt is produced in test tube during reaction? बच्चे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, क्लियर, यस और नो बताइए। 49D 50B, रिएक्शन देख लेना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। बच्चे देखो स्टेट सिंबल्स के साथ इक्वेशंस आ रही हैं, ये आपको करनी आनी चाहिए। जिंक सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस, हाइड्रोजन गैस। तो आई विल पिक ऑप्शन बी। जिंक इज इन सॉलिड फॉर्म, H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो एक्वस। जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा, वो एक्वस होगा, पानी में डिसॉल्व होगा, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। नेक्स्ट 52, व्हाट इज द रोल ऑफ सोप सोल्यूशन इन दिस एक्सपेरिमेंट? बच्चे सोप सोल्यूशन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है जिससे बबल्स बन रहे हैं। तो बच्चे इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर बबल फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड इन स्मॉल पार्ट्स। तो बच्चे सी इज ट्रू। बच्चे इट चेंजेस द एसिडिटी, गलत। इट इज यूज्ड फॉर फ्रेग्रेंस, गलत। देखो ऑल ऑफ द अबाव, इसको देख के ऑल ऑफ द अबाउ टिक मत कर देना, इसको ध्यान से पढ़ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑल राइट, केस 2 बच्चे, दिस इज टॉकिंग अबाउट हीमोडायलिसिस, किडनी फेलियर। तो बच्चे दी अबाउट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस व्हिच इज डन टू रिमूव, काय के लिए यूज करते हैं? इट इज टू रिमूव एक्स्ट्रा यूरिया। बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, हीमोडायलिसिस की मशीन में हम यूरिया रिमूव करते हैं। हीमोडायलिसिस विल नॉट हेल्प इन वाटर रेगुलेशन, जैसे किडनी वाटर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, हीमोडायलिसिस मशीन में सिर्फ यूरिया रिमूव होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूवल नहीं है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 54, नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनी इज अबाउट 180 लीटर्स। 54A, ये एनसीईआरटी की बुक से है बच्चे, फैक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, which substance has lowest concentration at X and highest concentration at Y? ओके बच्चे इस जगह पे यूरिया सबसे ज्यादा और Y इसमें, ओके जस्ट अ मिनट, ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। ओके तो यहां बचे कंपैरेटिवली लेस यूरिया और यहां मोर यूरिया। ओके लेट्स चेक, यहां चेक करते हैं क्या है। ओके देखो बच्चे बी ऑप्शन पिक करेंगे, यूरिया लोएस्ट एट एक्स एंड सॉल्ट्स एंड यूरिया कंसेंट्रेशन इज हाईएस्ट एट वाई। देखो बच्चे जब ब्लड यहां से आएगा अंदर तो यहां यूरिया कम होगा कंपैरेटिवली, और जब मशीन के अंदर यूरिया रिमूव हो जाएगा तो यहाँ जो फ्लूइड बाहर आएगा इसमें यूरिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन क्या है?
C, urea is lowest at X and Y में salt or urea highest. Question number 56, which of the following statements are incorrect for dialysis? The fluid has same osmotic pressure as blood. बच्चे this is wrong. ठीक है ना? एक मिनट. The fluid has same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. बच्चे this is wrong. अगर osmotic pressure same होगा तो यूरिया बाहर नहीं आएगा. नहीं as blood. बच्चे I think एक मिनट आगे पढ़ते हैं. The waste products from blood pass into dialyzing fluid by osmosis. This is true. This is true. The process is different because there is more reabsorption involved. Okay, the actual volume of initial filtrate excreted is only a liter or 2 a day. Fourth is also correct. तो यहाँ मेरे पास incorrect क्या है? 2 and 4 is correct. All right. So 2 and 4 तो correct है. All right, let's check. Question number 56. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा confusing है. Okay, question number 56. All right, they are saying statement number 2 and 3 are incorrect. Okay, not osmosis by diffusion, and process is similar to function of kidney, but difference since there is no reabsorption. Okay, all right, बच्चे हम osmosis नहीं pick करेंगे, हम diffusion pick करेंगे. All right, क्योंकि water movement नहीं है from higher to lower. All right, तो बच्चे इसमें just a moment, let's read. अगर इसमें कुछ दिया हुआ है, okay, ठीक है. तो बच्चे what we have to remember, waste is removed by diffusion. Diffusion से remove होगा, and process is different because there is less reabsorption. तो बच्चे 2 and 3 are wrong statements. Okay, correct statement कौन सी है? 1 and 4. So fluid has same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. तो nitrogenous waste की concentration कम होती है, तो blood से वो move होके कहाँ आएगा? Fluid में. Fourth is true. Actual volume of initial filtrate is only 1 liter or 2 liters. तो बच्चे incorrect statement कौन सी है? 2 and 3. So we'll pick option B. All right. Question number 57. All right. Okay. So this is talking about refraction, hot air में. Which phenomena is observed? Priyanka sees through a stream of hot air. बच्चे will pick option B, atmospheric refraction. Question number 58. She listed some phenomena similar to these. बच्चे atmospheric refraction से क्या क्या होता है? Twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset. तो इसका सही ऑप्शन क्या है? A. All right. 57B, 58A. चलो next question. 59. Her friend is trying to observe the star in sky and concluded the following. बच्चे देखो, star twinkling होगी and apparent position high हो जाएगी real से. So position of star changes continuously. True. Light comes to earth after reflection from earth's atmosphere. Not reflection, refraction. Due to dispersion, different colors of star are seen from earth. Different colors. Wrong. Light suffers refraction from different layers. 4 is true. तो बच्चे 1 and 4 are true. ये रहा. C option. 1 and 4 statement are true. Position continuously change होगी and light from stars will suffer continuous refraction from different layers. Question number 60. Colder layers of air present in atmosphere are considered as. बच्चे it will be considered optically denser. ठंडा जो टेम्परेचर है उस पे एयर क्या होगा? Optically denser. All right. Okay. तो बच्चे this is it. We are through with another sample paper. बस ये वाला क्वेश्चन जो था हमें थोड़ा सा इसने घुमाया. क्वेश्चन नंबर 56 हीमोडायलिसिस पे बेस्ड, क्योंकि इसकी ज्यादा थ्योरी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी है. यू नीड टू रिमेंबर इन हीमोडायलिसिस
डिफ्यूजन से आपके नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होगा, इनिशियल फिल्ट्रेट सिर्फ 2 लीटर है, ये चीज याद रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स है आई थिंक ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हुए, ठीक है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई थिंक जो आज हमें थोड़ा सा जिसने घुमाया है, रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन। ऑल राइट, चलो तो बच्चे दिस इज इट। यहां हमारा एक और सैंपल पेपर खत्म हो गया। बच्चे कल मैंने एक असर्शन रीजन की फाइल शेयर की थी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट? 100 असर्शन रीजन थे उसमें। ओके, आई थिंक आप में से आज काफी सारे बच्चों का एग्जाम था। आज आपका कोई स्किल सब्जेक्ट का पेपर था? चलो ठीक है। तो बच्चे टुमारो व्हाट वी विल डू इज, कल क्या करेंगे, कल असर्शन रीजन की जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की थी वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव गॉट सम टाइम प्लीज गो थ्रू इट। उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा उसको डिस्कस करने में। सो एक बार अगर आप उसको देख लेंगे तो इट विल देन बिकम इजियर फॉर अस। ऑलराइट, ओके, चलो बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम 7 PM।